السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، وفاقی کابینہ کی تشکیل میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بہت امپارٹنٹ سوال ہے۔ لوگ بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایون مجھے بھی واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہیں کہ بھائی وفاقی کابینہ میں کیوں ڈیلے ہو رہا ہے، اور کون کون اس میں شامل ہوں گے، کس کس کو کون کون سی وزارت دی جا رہی ہے، کس جماعت کو کتنی وزارتیں دی جا رہی ہیں۔ ایک میں نے پہلے پروگرام کیا ہے کہ کس جماعت کو کتنی وزارتوں کی کمٹمنٹ جو ہے کی گئی ہے یا تجویز دی گئی ہے کہ جے یو آئی کو کتنی وزارتیں ملیں گی، پیپلز پارٹی کو کتنی وزارتیں ملیں گی، یا باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو کتنی وزارتیں ملیں گی، نون لیگ اپنے پاس کتنی وزارتیں رکھیں گی۔ یہ ایک تجویز یا جو کمٹمنٹ اتحادیوں کے ساتھ کی گئی ہے وہ میں نے پروگرام کیا تھا، لیکن اس میں رد و بدل ہو رہی ہے اور اس پر ڈسکشن چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ میں نے بھی پہلے پروگرام بھی بتایا تھا اور آپ نے لوگوں نے بھی بہت لوگوں نے سنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی۔ کیوں نہیں بننا چاہ رہی، اس کی ایکچول اصل وجہ کیا ہے، وہ بھی اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اور ڈیلے کیوں ہو رہا ہے وفاقی کابینہ کا تشکیل کا معاملہ، یہ بھی بتاؤں گا۔ ڈیلے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب، یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ شہباز شریف صاحب وفاقی کابینہ میں جو حجم ہے وہ کم سے کم رکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ وزراء کابینہ میں شامل نہیں کرنا چاہتے، وزراء کی فوج ظفر موج نہیں بنانا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کم سے کم وزراء ہوں تاکہ کام، کیونکہ ظاہر عارضی طور پر حکومت آئی ہے، کوئی 5 سال کے لیے تو آئی نہیں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ شہباز شریف کا آئیڈیا ہے کہ ایک تو قومی خزانے پر برڈن کم ہوگا، بوجھ کم ہوگا، کام سے کام ہے کہ کام کرنا ہے، کام چاہیے ہمیں، اور کام کے جو لوگ ہیں ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے، خواہ خانہ پوری نہ کی جائے، ایک فارملٹی پوری نہ کی جائے۔ لیکن آصف علی زرداری جو ہیں اور پیپلز پارٹی، وہ شہباز شریف کی اس تجویز کے ساتھ یا اس آئیڈیا کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کو، وزیر اعظم کو، کہ جو اتحادی، جو پہلے عمران خان کے اتحادی تھے، کاف لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، کاف لیگ کے 2 وزیر تو ظاہر ہے، 2 ممبران تو اپوزیشن کے ساتھ ہیں نا، کاف لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، بی اے پی ہے، جمہوری وطن پارٹی ہے، تو جتنے بھی یہ اتحادی ہیں، ان اتحادیوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی ہے وہ کم از کم پوری ہونی چاہیے۔ اسلم بھوتانی صاحب ہیں، وہ کمٹمنٹ پوری کو ہونی چاہیے، ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے ان کو وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، یہ آصف علی زرداری نے ان کو کہا ہے۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے اس لیے انکار کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، جو میرے ذرائع ہیں یہ بتا رہے ہیں، آصف علی زرداری نے اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی یہ بتایا ہے اپنے دوستوں کو کہ اگر پیپلز پارٹی کو وزارتوں میں شامل نہ کیا جائے اور اس کے بدلے جو پیپلز پارٹی کا کوٹا ہے جو بنتا ہے وزارتوں میں، وہ اگر اتحادیوں کو دینا پڑے تو اتحادیوں کو دیا جائے، یعنی کاف لیگ کو، ایم کیو ایم کو، بلوچستان عوامی پارٹی کو، جمہوری وطن پارٹی کو، ان لوگوں کو راضی کیا جائے۔ ان کے ساتھ کمٹمنٹ جو کی گئی ہے وہ پوری ہونی چاہیے، اور پیپلز پارٹی کو بھلے ڈراپ کرنا پڑے کابینہ سے تو پیپلز پارٹی کو ڈراپ کرے، اور ہمیں وزارتوں کی لوڑ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہماری جو ہے ہم زبردستی کوئی اس میں شامل ہوں تو یا خانہ پوری کی جائے۔ تو لیکن اب شہباز شریف صاحب جو ہیں، وزیر اعظم جو ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی، پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہو، اور پیپلز پارٹی کو کیونکہ وہ ظاہر ہے اکیلے نہیں چاہتے، بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، تو وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی تو دونوں مل کے جو ہے ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں، معاشی مسائل ہیں، اس کو ہم حل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں عمران خان سے جو توڑی ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ بڑا کردار جو ہے وہ آصف علی زرداری کا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی
जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ सब थे। तो उन्होंने यही जुमला कहा, बीएपी के जो खालिद मक्सी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पर हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनके साथ हमारा ज़ाती एक ताल्लुक़ है, पुराना 40 साल का ताल्लुक़ है, तो इन पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं, जो भी ये कहेंगे तो हम वो करेंगे। तो हम आसिफ अली जरदारी साहब पर ट्रस्ट करके आए हैं। और एमक्यूएम भी आसिफ अली जरदारी ने जो कमिटमेंट की है सिंध लेवल की एमक्यूएम के साथ, वो तो ज़ाहिर है जरदारी साहब ही वादा कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि सिंध से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो सिंध हुकूमत आसिफ अली जरदारी के पास है, पीपल्स पार्टी के पास है, तो वो वही कमिटमेंट दे सकते हैं जो सिंध हुकूमत के साथ मसले मसाइल हैं एमक्यूएम के। तो आसिफ एमक्यूएम को भी लिहाजा आसिफ अली जरदारी लेकर आए हैं। इसी तरह काफ लीग जो है वो भी ट्रस्ट करती है, चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा जो है आसिफ अली जरदारी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, पहले भी वो इत्तेहादी रहे हैं। तो जमहूरी वतन पार्टी भी इसी तरह ही आसिफ अली जरदारी की वजह से ज़्यादातर जो इसमें रोल है, सबका रोल है वैसे, मौलाना फजल रहमान का भी मेल मुलाकातें, मामलात तय करना, लेकिन स्टेक होल्डर जो हैं सिंध में आसिफ अली जरदारी हैं, और जो ताल्लुकात में कमिटमेंट करने में और जो लीडिंग रोल है इसमें कोई शक नहीं है आसिफ अली जरदारी का है। तो आसिफ अली जरदारी की कोशिश है कि इत्तेहादी जो हैं, जो जिनको हम लाए हैं, इनके साथ जो हमने कमिटमेंट की है, वादे वईद किए हैं, वो पूरे होने चाहिए, चाहे पीपल्स पार्टी को काबीना में हिस्सा मिले न मिले। तो पीपल्स पार्टी को काबीना में हिस्सा नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर है स्पीकरशिप भी पीपल्स पार्टी ले लेगी, और फिर चेयरमैनशिप भी पीपल्स पार्टी ले सकती है, फिर सदर ममलिकत का ओहदा है, ये 3 बड़े ओहदे तो पीपल्स पार्टी ले लेगी, ना करके भी। ज़ाहिर काबीना में जब शामिल नहीं करेंगे या नहीं होगी, हिस्सा नहीं लेगी, तो फिर तो पीपल्स पार्टी को ये 3 बड़े ओहदे तो मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान को सदारत मिल सकती है, नहीं मिल सकती। मौलाना भी सदारत की दौड़ में मौलाना का भी नाम शामिल है, इसका भी इम्कान है कि मौलाना फजल रहमान भी सदर ममलिकत बन सकते हैं, और इसका भी इम्कान है कि आसिफ अली जरदारी सदर ममलिकत बन जाएं, या फिर कोई और तीसरा नाम भी हो सकता है। लेकिन अभी फ़ाइनल कुछ नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जो फौरी तौर पर जो डिस्कशन चल रही है वो एक तो स्पीकर पे चल रही है, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए, और दूसरी डिप्टी स्पीकर के लिए भी चल रही है, लेकिन काबीना जो है उसकी तश्कील पर डिस्कशन चल रही है। तो जो इत्तेहादियों के साथ तय किया गया था, तमाम जमातों ने जो मुशावरत की थी शुरू में हुकूमत पीटीआई की ख़त्म करने से पहले, तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब होने से पहले जो कमिटमेंट की गई थी, उसमें यह तय हुआ था कि ये नून लीग जो है 12 वजारतें रखेगी अपने पास, और 7 वजारतें पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी। इनमें ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट वजारतें भी शामिल हैं। वजारत ख़ारजा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को देने की पर गौर किया गया है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम को 4 वजारतें मिलने की डिस्कशन की गई है देने की। एमक्यूएम को 2 वजारतें, इसी तरह बीएनपी मैंगल, एएनपी अवामी नेशनल पार्टी जो है असफंद यार वली की, जमहूरी वतन पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक एक वजारत मिलने का इम्कान है। मोहसिन दावड़ हैं, असलम भूतानी हैं, काफली के 2 मेंबरान थे, तारिक बशीर चीमा और जो चौधरी सालिक हुसैन। तो तारिक बशीर चीमा को एक वजारत मिल सकती है, और मोहसिन दावड़ और असलम भूतानी को भी बताया जा रहा है कि उनको भी वफाकी काबीना में शामिल किया जा सकता है। इसी तरह नून लीग के जो लोग हैं, जो 12 वज़रा शामिल करना चाह रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनमें ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, खुरम दस्तगीर हैं, हसन इकबाल हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं, राना सनाउल्लाह है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी। ये तो एक्सपेक्टेड हैं कि इनको शामिल किया जा सकता है। आज़म नज़ीर तारड़ के लिए कहा जा रहा है कि जी वो सेनेट में कायद ऐवान उनको बनाया जा सकता है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के सेनेट से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और शेरी रहमान का भी नाम आ रहा है कि उनको भी वजारत मिल सकती है। शाजिया मरी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी डिस्कस किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर ख़ारजा के लिए, और बलूचिस्तान की जो गवर्नरशिप है, क्योंकि बलूचिस्तान के गवर्नर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है,
सिंध के गवर्नर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, पंजाब के गवर्नर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, और बलूचिस्तान के गवर्नर ने भी, ज़हूर आगा ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो बलूचिस्तान में JUI को गवर्नरशिप मिल सकती है, सिंध में MQM को, और पंजाब में पीपल्स पार्टी को मखदूम अहमद महमूद का नाम आ रहा है। इसी तरह मलिक अहमद ख़ान, अता तारड़, हनीफ अब्बासी को भी मुशीर बनाए जाने का इम्कान है। और स्पीकर का भी फाइनल नहीं हुआ, पहले खुर्शीद शाह और नवीद कमर का नाम आ रहा था, अब राजा परवेज़ अशरफ का भी नाम आ रहा है। तो 3 उम्मीदवार हैं स्पीकर के लिए। डिप्टी स्पीकर BNP, मेंगल या बलूचिस्तान अवामी पार्टी से लिया जा सकता है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का ओहदा इस वक्त भी बलूचिस्तान के पास है। कासिम सूरी साहब जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं, तो इसलिए बलूचिस्तान को ही डिप्टी स्पीकर का ओहदा देने के पर डिस्कशन की जा रही है, गौर किया जा रहा है। तो काबीना की तश्कील का मामला व्यूअर्स डिले इस वजह से हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब छोटी काबीना रखना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा वज़रा को काबीना में शामिल नहीं करना चाहते। लेकिन अगर ऐसा करेंगे शहबाज शरीफ, तो फिर जो इत्तेहादी हैं उनको हिस्सा कम मिल रहा है। यानी कोशिश एक की जा रही है कि कोई 30-40% जो है थोड़ा सा कट लगाएं इत्तेहादियों के साथ वजारतों में, कि इत्तेहादियों को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। मियाँ शहबाज शरीफ जो ये मेल मुलाकातें कर रही हैं, MQM के बहादुराबाद भी गए हैं, उनके साथ भी मुलाकात की है, डिस्कशन की है, उनको भी कायल करने की कोशिश की है। मौलाना फजल रहमान के पास चले गए हैं, आसिफ अली जरदारी के पास चले गए हैं, खालिद मगसी साहब के पास चले गए हैं वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाने के बाद। तो तमाम जो मोहसिन दावड़ के पास चले गए हैं, तमाम जो इत्तेहादी हैं इन तमाम इत्तेहादियों के पास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जा रहे हैं और उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो कमिटमेंट जो पहले हुई थी या डिस्कशन हुई थी, तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करें कि कम वजारतें फ़र्ज़ करें। किसी को 4 कमिटमेंट 4 वजारतों की गई है तो उनको 3 वजारतें मिले, जिसको 7 वजारतों की गई है तो उसको 6 या 5 वजारतें वो ले लें, और जिसको 2 वजारतों की दी गई है तो उसको 1 वजारत दे दें। तो बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें से किसी को देंगे जो बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर देंगे, या फ़र्ज़ करें कि भाई धमकी दे देते हैं कि मैं अलग हो जाता हूँ, आपने मेरे साथ कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं कर रहे, मैं जी छोड़ रहा हूँ इत्तेहाद। तो ज़ाहिर है हुकूमत भी तो नहीं गिरानी ना। हुकूमत को 174 वोट वज़ीर आज़म को पड़े थे, 3 वोट निकल जाएं, 171 हो जाएं फ़र्ज़ करें, या 176 वोट है फ़र्ज़ करें, 2 वोट कास्ट नहीं हुए थे इकबाल मोहम्मद अली का, क्योंकि वो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज थे, और दूसरा सरदार अयाज सादिक का, ये 2 वोट कास्ट नहीं हुए। ये कास्ट होते तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 176 वोट हो जाते। तो ये फ़र्ज़ करें 76 भी हो जाते। अगर 4 वोट निकल जाएं तो ज़ाहिर है 171, या 5 वोट निकल जाएं तो 171 हो जाएंगे। तो इसलिए एक एक वोट जो है कीमती है इस वक्त हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म के लिए। तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी इत्तेहादी, एक भी रुकन कोई नाराज़ हो, तो उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको पेशकश ये ज़रूर की है कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा अगर न बनाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम नाराज़ नहीं होंगे, हमारा जो कोटा है वो भी आप इत्तेहादियों को दे दें, लेकिन इत्तेहादियों के साथ की गई कमिटमेंट जो है वो पूरी की जाए। तो ये काबीना के तश्कील का मामला इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन इस पर मुशावरत का अमल वज़ीर आज़म का जारी है। तमाम जमातों के कायदीन भी इसमें उनकी मुआवनत कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं, और इम्कान बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में आज कल में यानी वफाकी काबीना की तश्कील हो जाएगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।